Welcome in Maths Academy. Okay, so in the last lecture we have started sequences, ठीक है? And so far we have done two lectures on sequences. First lecture में हम लोगों ने discuss किया था sequence का definition. In the first lecture we we discussed definition of sequences, ठीक है? और वहाँ पर मैंने कुछ type of sequences भी बताई थी, ठीक है? मैंने sequences को 6 type में divide किया था कि किस किस type के sequences exam में appear हो सकते हैं, मतलब उनके बारे में कुछ ना कुछ पूछा जा सकता है, ठीक है? ओके, एंड देन सेकंड लेक्चर वाज ऑन मोनोटोनिक सीक्वेंस, ठीक है, और वो हमारा फिनिश्ड हो गया था. सो इन द टुडेज लेक्चर आई एम गोइंग टू डिस्कस बाउंडेड सीक्वेंस कि बाउंडेड सीक्वेंस क्या होते हैं, ठीक है? तो वो हम लोग डिस्कस करते हैं. तो बाउंडेड सीक्वेंस की डेफिनेशन से पहले हमें कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए, ठीक है? तो पहले हम उनको डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम लोग बाउंडेड सीक्वेंस की बात करते हैं. सो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं. ओके, सो फर्स्टली वी हैव टू नो व्हाट इज द बाउंडेड अबव सीक्वेंस, ठीक है? What is the definition of bounded above sequence? Okay, so bounded above sequence, suppose that you have a sequence xn, then this sequence is called bounded above sequence if there exists a beta, a real number, there exists, that means at least one, more than one can be possible, there exists at least one, ठीक है? There exists a beta, a real number such that xn is less than equal to beta for all n in n, means all the terms of the sequence xn is less than or equal to this number beta for all n. सीक्वेंस की सारी टर्म्स क्या होनी चाहिए? या तो कोई टर्म्स बीटा के इक्वल हो या फिर सारी टर्म्स क्या होनी चाहिए? बीटा से छोटी होनी चाहिए. All the terms are less than and equal to beta. Then this beta is known as upper bound of the sequence and sequence known as bounded above sequence. BDD is short of bounded. ठीक है? Okay. So here not one thing, if sequence has a upper bound, if sequence has a upper bound then it has infinitely many upper bounds. अगर सीक्वेंस का एक भी अपर बाउंड आपको मिल रहा है then this will have infinitely many upper bounds. क्योंकि हम रियल नंबर्स की तो बात करें. सपोज ये यहाँ पे सीक्वेंस के टर्म्स है, ये कोई अपर बाउंड है आपका, ठीक है? सपोज दिस इज योर बीटा. सो इस बीटा से बड़े जितने भी नंबर्स होंगे, इस बीटा से बड़े जितने भी नंबर्स होंगे वो सब क्या होंगे? अपर बाउंड्स होंगे ना. वो सब क्या होंगे? अपर बाउंड्स होंगे. क्लियर ना? सो इफ योर सीक्वेंस हैज ए अपर बाउंड देन इट विल हैव इनफाइनाइटली मेनी अपर बाउंड. सो रिमेंबर, अपर बाउंड नीड नॉट बी यूनिक. वो यूनिक हो जरूरी नहीं है. इनफैक्ट वो कभी भी यूनिक नहीं होता है. सीक्वेंस का अपर बाउंड यूनिक नहीं होता है, ध्यान देना. ओके, so it is the definition. Like if we take example, suppose that I am taking simple example which is 1 by n, ठीक है? 1 by n हमारा सबसे simple example है. Okay, so terms of this sequence are, means expanding form of this sequence is 1 by 3, 1 by 4, 1 by 5, 1 by 6 and so on, like that, ठीक है? So हम इजीली ऑब्जर्व कर पा रहे हैं. नंबर लाइन अगर मैंने लिया, सो इट इज योर 1, से हियर यू हैव 0. फर्स्ट टर्म इज 1, सेकंड टर्म 1 by 2, थर्ड टर्म 1 by 3, देन 1 by 4, देन 1 by 5, मींस टर्म्स आर मूविंग टू 0. टर्म्स आर मूविंग टू 0. तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं? ऑल द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस आर लेस देन एंड इक्वल टू 1. वी कैन इजीली से ना that xn is less than and equal to 1 for all n. Equality will hold for the first term because first term is equal to 1, ठीक है? And all the terms are strictly less than 1. So 1 is the upper bound for this sequence. अब 1 से बड़े जितने भी नंबर होंगे नंबर लाइन पर, 1 से बड़े जितने भी नंबर हैं, नंबर those are greater than 1, all are the upper bound of this sequence xn. Clear? Okay. Now next we'll take lower bound, that is bounded below sequence. Next definition is bounded below sequence. Bounded below. So a sequence xn is called bounded below sequence if there exists a real number, say alpha. There exists a real number alpha. मतलब at least एक exist करना चाहिए, at least one, ठीक है? There exists a real number alpha such that alpha is less than equal to xn for all n. Means xn is greater than equal to alpha for all n. All the terms of the sequence xn are greater than or equal to alpha.
ठीक है, सीक्वेंस की सारी टर्म्स अल्फा से या तो बड़ी हो या फिर कुछ टर्म्स अल्फा के इक्वल हो, then sequence is known as bounded below sequence and this number alpha is known as lower bound for the sequence xn. clear है? same thing यहाँ पर भी, if sequence has a lower bound, lb for lower bound. if sequence has a lower bound then it has infinitely many lower bounds. एक भी अगर lower bound exist कर रहा है then your sequence will have infinitely many lower bounds. take same example, xn is equal to say 1 by n sequence. So expanding form is like this. ठीक है, here you have number line. First term say here 0, second term is 1 by 2, third term is 1 by 3, 1 by 4, 1 by 5 and like that. Your terms are moving to 0 now. Your terms are moving to 0. Here all the terms are positive. Here all the terms of my sequence is positive. So I can say all the terms are greater than 0. All the terms are greater than 0. Simply I can say that xn is greater than equal to can I put here 0? Can I put here 0? ऐसी पूछ रही हूँ, क्या सीक्वेंस की कोई टर्म 0 है? नहीं है. 0 कब होगा? when your n tends to infinity. When your n tends to infinity then this 1 by n terms tends to 0. तो अगर इन्फिनिटी पे अगर हमें कुछ मिल रहा है तो उसको हम कभी भी कंसिडर नहीं करते हैं. रिमेंबर, ठीक है. सो फॉर देयर इज नो n फॉर विच वैल्यू ऑफ फंक्शन वैल्यू ऑफ दिस सीक्वेंस इज 0. सो आई टेक स्ट्रिक्टली साइन फॉर ऑल n. ऑल द टर्म्स ऑफ सीक्वेंस आर पॉजिटिव ना, सो सिंपली आई कैन टेक 0 इज द लोअर बाउंड. 0 is the lower bound. So no doubt 0 से छोटी जो भी टर्म्स है, 0 से छोटे जो भी रियल नंबर्स हैं वो सारे क्या हो जाएंगे सीक्वेंस के लिए लोअर बाउंड्स हो जाएंगे. सारे क्या हो जाएंगे सीक्वेंस के लिए लोअर बाउंड. सो सीक्वेंस हैज इनफाइनाइटली मेनी लोअर बाउंड्स. क्लियर है? ओके. नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन इज, जैसे कि अभी मैंने बताया है अगर कोई सीक्वेंस है वो बाउंडेड अबव है, बाउंडेड बिलो है. ठीक है, बाउंडेड अबव है मतलब उसका एक अपर बाउंड मिल रहा है, दैट मींस इनफाइनाइटली मेनी अपर बाउंड्स होंगे. बाउंडेड बिलो है दैट मींस एक लोअर बाउंड मिल रहा है, सो इनफाइनाइटली मेनी लोअर बाउंड्स होंगे. करेक्ट ना? ओके. सो इफ योर सीक्वेंस हैज इनफाइनाइटली मेनी अपर बाउंड्स, ठीक है, सपोज इट नंबर लाइन है, ये कोई सीक्वेंस है, इसका ये एक अपर बाउंड मिल रहा है, तो ये सारे क्या होंगे, सपोज इट यहाँ पर मेरे सीक्वेंस की टर्म्स है, ठीक है, infinitely many terms of my sequence xn. Okay, and beta, I am saying beta is one of the upper bound. I am saying beta is one of the upper bound. So इस बीटा से बड़े जो भी नंबर्स हैं वो सारे क्या हो रहे हैं? अपर बाउंड्स हो रहे हैं, अपर बाउंड हो रहे हैं. तो इन अपर बाउंड्स में जो सबसे बड़ा होगा, इन अपर बाउंड में जो सबसे छोटा होगा, लीस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा ना, लीस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा ना. ये सारे अपर बाउंड्स हो रहे हैं तो इनमें मिनिमम ऑफ द सीक्वेंस xn. क्लियर? एंड इट इज डिनोटेड बाय सुप ऑफ xn और लीस्ट अपर बाउंड इन शॉर्ट LUB ऑफ सीक्वेंस xn. नोट हियर, प्लीज मेक अ नोट हियर. सुप्रीमम ऑफ सीक्वेंस xn विल ऑलवेज यूनिक, क्योंकि जितने भी अपर बाउंड्स होंगे उनमें से आपको क्या लेना है? लीस्ट वन. तो जो भी लीस्ट अपर बाउंड रहेगा वो तो यूनिक ही रहेगा. ठीक है, उसके लिए तो मोर देन वन चॉइसेस हो ही नहीं सकती. ठीक है, सो लीस्ट अपर बाउंड दैट इज सुप्रीमम इज ऑलवेज यूनिक, जबकि अपर बाउंड लोअर बाउंड यूनिक नहीं होते हैं, अभी बता दिया था मैंने. क्लियर? से अगर मैं एग्जाम्पल की अगर मैं बात कर रही हूँ, इफ वी टेक एग्जाम्पल, ठीक है, सेम एग्जाम्पल हमारा जो सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है उसी को ले लेते हैं, दैट इज 1 by n सीक्वेंस. आई एम टेकिंग हियर सीक्वेंस xn एज 1 by n. ठीक है, तो अभी नंबर लाइन पे हमने बात करी थी सीक्वेंस की, ये फर्स्ट टर्म, ये यहाँ पर ये सेकंड टर्म, ये यहाँ पर थर्ड टर्म एंड लाइक दैट. ठीक है, और मैंने यहाँ पर बोला था दैट 1 इज द अपर बाउंड. ठीक है, अभी बताया था 1 इज द अपर बाउंड. अब यहाँ पर देखो 1 को मैंने अपर बाउंड कॉल किया है, 1 को मैंने
अपर बाउंड खोल गया, आई कैन टेक 2 3 4, इनको भी मैं अपर बाउंड ले सकती थी, बट सीक्वेंस की टर्म्स को ऑब्जर्व कर लेना है। अगर किसी भी सीक्वेंस के लिए अपर बाउंड या लोअर बाउंड फाइंड करना है सबसे पहले, तो उसके लिए सबसे पहले सीक्वेंस की टर्म्स को ऑब्जर्व करना है, ना कि आप रैंडमली ऐसे ही लिख दो। क्योंकि अगर सीक्वेंस की टर्म्स को ऑब्जर्व करते हुए अगर आप लिख रहे हो तो उस केस में आप सुप्रीमम और इन्फीमम इजीली बता पाओगे। अभी हम लोग एग्जाम्पल में भी देखेंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर 1 जो है सीक्वेंस का अपर बाउंड भी हो रहा है, बट सीक्वेंस की टर्म भी हो रहा है। 1 सीक्वेंस का अपर बाउंड हो रहा है, बट 1 सीक्वेंस की टर्म भी हो रहा है, और 1 से सीक्वेंस की सारी टर्म छोटी हो रही है। 1 से सीक्वेंस की सारी टर्म छोटी हो रही है एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म इज योर 1, सो हियर 1 इज व्हाट, 1 विल बी द लीस्ट अपर बाउंड ना। 1 क्या हो जाएगा, ये जितने भी अपर बाउंड है उनमें से क्या होगा, लीस्ट 1। लीस्ट 1 क्या होगा आपका, 1 होगा, क्योंकि जो अपर बाउंड लिया है वो सीक्वेंस की ही टर्म है भाई, तो ऑलवेज वो क्या होगा, रेस्पेक्टिव सुप्रीमम होगा ही। इट्स ऑब्वियस ना, डेफिनेशन बता दिया मैंने, ठीक है। सो हियर सुप्रीमम ऑफ दिस सीक्वेंस 1 by n is 1। इस सीक्वेंस के लिए सुप्रीमम हो जा रहा है 1। क्लियर? नाउ लेट्स मूव to another definition, which is infimum of the sequence xn। ठीक है, okay, infimum of sequence xn। So suppose that if your sequence is bounded up below, your sequence is bounded below, then it has infinitely many lower bound। sequence आपका है वो bounded below है, then it will have infinitely many lower bound। So the greatest lower bound, so the greatest lower bound of sequence xn is called infimum of sequence xn। ये आपकी नंबर लाइन है। सपोजिट ये आप यहाँ पर ये सीक्वेंस की टर्म्स इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स ऑफ माय सीक्वेंस एक्सेल, और मैंने बोला यहाँ पर ये कोई अल्फा नंबर आ रहा है जो कि इसका क्या आ रहा है, लोअर बाउंड है। तो इस अल्फा से छोटे सारे नंबर्स क्या होंगे, इस अल्फा से छोटे सारे नंबर्स क्या होंगे, लोअर बाउंड्स होंगे। सो इन लोअर बाउंड्स में क्या होगा, सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट एग्जिस्ट करेगा ना। ग्रेटेस्ट क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। सो दैट ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड will known as infimum of the sequence xn। clear? okay, and it is denoted by inf of xn या फिर in short greatest lower bound glp of sequence xn। clear? and infimum of sequence if it is exist then it will always unique। obvious ही बात है, I'm taking greatest lower bound, तो इन सभी में जो greatest वन रहेगा, जो ग्रेटेस्ट वन रहेगा, ग्रेटेस्ट वन तो ऑलवेज क्या होगा, यूनिक होगा ही। क्लियर ना? ओके, सो एग्जांपल अगर मैंने लिया सेम वही ले लेते हैं, 1 by n सीक्वेंस xn इज इक्वल टू 1 by n सीक्वेंस। तो अभी हमने देखा था ऑल द टर्म ऑफ द सीक्वेंसेस आर पॉजिटिव जस्ट ग्रेटर देन 0, बट टर्म्स आर टेंडिंग टू 0 ना, 0 की तरफ टेंड कर रही है व्हेन n टेंडिंग टू इंफिनिटी। ठीक है, व्हेन n टेंडिंग टू इंफिनिटी तो टर्म्स आर टेंडिंग टू 0। तो यहाँ पर इन्फीमम क्या हो जाएगा, इन्फीमम ऑफ सीक्वेंस इज इक्वल टू 0। क्लियर? ओके, सो इट वाज आवर बाउंडेड अबव सीक्वेंस, बाउंडेड बिलो सीक्वेंस, सुप्रीमम एंड इन्फीमम ऑफ सीक्वेंस। तो अभी नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं बाउंडेड सीक्वेंस की। नाउ द नेक्स्ट इज बाउंडेड सीक्वेंस। bounded sequence, so a sequence is called bounded if it is bounded above as well as bounded below। ठीक है, a sequence is known as bounded sequence if it is bounded above as well as bounded below। sequence xn is called bounded if there exist two real number alpha and beta such that all the terms of sequence xn lies between alpha and beta। all the terms of the sequence lies between alpha and beta, lower bound and upper bound। clear? Then your sequence is said to be bounded sequence। or we can take another definition,
there exists a positive number m such that mod of xn is less than equal to m for all n. If there exists a positive number say m such that mod of xn is less than equal to m, then also sequence is known as bounded. Then also sequence is known as bounded sequence. Clear ना? Because ये सभी ओके तो बाउंडेड सीक्वेंस क्लियर रहा. ठीक है, नेक्स्ट अभी जो हमने एग्जांपल लिया our simplest example, that is 1 by n. ठीक है, we have seen that xn lies between 0 and 1 for all n, means it is bounded above as well as bounded below. So this implies here your sequence 1 by n is bounded. ठीक है, सीक्वेंस की सारी टर्म्स दो फिक्स रियल नंबर्स के बीच में अगर आ जा रही है तो सीक्वेंस क्या हो जा रहा है, हमारा बाउंडेड सीक्वेंस हो जा रहा है. क्लियर है ऑल डेफिनेशंस? ओके, नाउ लेट्स मूव टू द एग्जांपल्स, बट बिफोर टेकिंग एग्जांपल ये कुछ नोट है, लेट मेक यू सम नोट. फर्स्ट, सपोज इट योर सीक्वेंस इज मोनोटोनिक. सपोज इट योर सीक्वेंस इज मोनोटोनिक, ठीक है, और हमें उसको बाउंडेड भी शो करना है, तो उस केस में कैसे करोगे? सपोज इट योर सीक्वेंस इज इंक्रीजिंग. योर सीक्वेंस इज इंक्रीजिंग, टर्म्स आर इंक्रीजिंग. ठीक है, टर्म्स आर इंक्रीजिंग. ठीक है, अगर सीक्वेंस के टर्म्स say this is your number line and sequence की terms है ना, if your terms of the sequence are increasing, ठीक है, then no need to find lower bound. If the terms of the sequence are increasing, then no need to find lower bound, because first term will give you a lower bound. First term will give you a lower bound. तो अगर sequence अगर increasing है तो फर्स्ट टर्म जो है वो सीक्वेंस का क्या दे देगा, लोअर बाउंड फाइंड दे देगा. सो नो नीड टू फाइंड लोअर बाउंड as it will be x1. You just need to find upper bound. We just need to find upper bound. Same thing, if terms of the sequence, suppose your sequence is decreasing, terms are decreasing. ठीक है, sequence is decreasing, terms are decreasing, then no need to find upper bound. टर्म्स अगर डिक्रीज कर रही है तो फर्स्ट टर्म जो है वो आपको क्या दे देगा, अपर बाउंड दे देगा. देन फर्स्ट टर्म विल गिव यू एन अपर बाउंड. सो यू जस्ट नीड टू फाइंड लोअर बाउंड. तो हमें क्या फाइंड करना होगा, केवल लोअर बाउंड ही फाइंड करना रहेगा. ठीक है, तो मोनोटोनिक सीक्वेंस है तो एक टर्म हमें अपर या लोअर बाउंड तो रेस्पेक्टिव मिल जाएगा. इनफैक्ट ध्यान देना, अगर सीक्वेंस इंक्रीजिंग है, इफ योर सीक्वेंस इज इंक्रीजिंग, देन फर्स्ट टर्म विल बी योर लोअर बाउंड, सेम एज इनफीमम. सेम एज इनफीमम होगा ना, क्योंकि सीक्वेंस का टर्म ही आपको लोअर बाउंड मिल रहा है. सीक्वेंस का टर्म ही आपको लोअर बाउंड मिल रहा है तो वो इनफीमम होगा ना. सेम थिंग, इफ योर सीक्वेंस इज डिक्रीजिंग, देन फर्स्ट टर्म इज योर अपर बाउंड एज वेल एज सुप्रीमम. एज वेल एज सुप्रीमम. भाई ऑब्वियस ना, अगर अपर और लोअर बाउंड आपने जो भी फाइंड किया है वो सीक्वेंस की ही टर्म आ रही है, वो सीक्वेंस की ही टर्म आ रही है, तो रेस्पेक्टिव सुप्रीमम और इनफीमम होगा ही. क्लियर? ओके, सो वी जस्ट नीड टू फाइंड अनदर बाउंड. सो यहाँ पर आई एम मेकिंग ए नोट, टू फाइंड अदर बाउंड इन दीज फर्स्ट एंड सेकंड केस वी कैन यूज लिमिट ऑल्सो. मतलब we will see when n tending to infinity, then terms of the sequence are tending to what? Terms of the sequence are tending to what? अगर हम लिमिट की बात कर पा रहे हैं तो if we can talk about limit then only, otherwise तो नहीं ना. okay, ठीक है. next, same thing, sequence xn is bounded if and only if range of the sequence तो वो respective supremum और infimum हो जाएगा, जैसा कि अभी मैंने बताया. क्लियर है? ओके, सो ये कुछ पॉइंट्स से ध्यान रखना. नाउ विल टेक एग्जांपल्स. ठीक है, इन टुडेज लेक्चर विल डिस्कस आईआईटी जेम प्रीवियस ईयर्स आईआईटी जेम एग्जांपल्स, बट उससे पहले ये एक एग्जांपल ले लेते हैं व्हिच इज नॉन प्रीवियस ईयर्स एग्जांपल क्वेश्चन. सो हियर माय सीक्वेंस nth term is defined by xn is equal to n raised to n when n is less than equal to 10 raised to 6, and when n is greater than 10 raised to 6 then it is 1 by n. I want to check whether sequence xn is bounded or not. ठीक है, तो बाउंडेड है या नहीं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें अपर और लोअर बाउंड की तरफ देखना होगा. अब भाई यहाँ पर देखो, सीक्वेंस की जो टर्म है, इफ योर n is less than equal to 10 raised to 6 and 1 2 3 4 like that,
goes to 10⁻⁶. 10⁻⁶ है, तब तक तो सीक्वेंस की टर्म्स डिफाइंड हो रही है n⁻n, जो कि बहुत बड़ा नंबर होने वाला है n⁻n. ठीक है, मीन्स टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस आर 1:1, 1:1, 2:2, 3:3, 4:4, 5:5. कहाँ तक? When n is less than and equal to 10⁻⁶, means n equal to 10⁻⁶. So when your n is equal to 10⁻⁶, then we have this number 10⁻⁶ raised to power 10⁻⁶. They are increasing. But when n is when n is greater than 10⁻⁶, strictly greater than this number 10⁻⁶, then terms are given by 1/n, means क्या रहेगी terms, मतलब उसके बाद भी जो भी नंबर आएगा, whatever is your number, so 1/n टाइप, इस टाइप से नंबर आ रहा है. So when n tending to infinity, अब देखो यहाँ पर ये टर्म्स इंक्रीज हो रही है, here these terms are increasing and tending कहाँ तक अप्रोच कर रही है, 10⁻⁶ raised to 10⁻⁶. आफ्टर दैट जो टर्म आ रही है वो 1/n टाइप की आ रही है. आफ्टर दैट जो टर्म्स आ रही है वो 1/n टाइप की आ रही है, मतलब टर्म्स क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि here when n tending to infinity, then these terms are tending to 0. These terms are tending to 0. ठीक है, तो यहाँ पर तो ये फाइनाइट नंबर ही है जो यहाँ तक अप्रोच करिए, उसके बाद टर्म्स यहाँ पर आ जा रही है. करेक्ट. सो यहाँ पर व्हाट यू विल से, 0, all the terms of the sequence are greater than 0 and less than equal to 10⁻⁶ raised to 10⁻⁶. 10⁻⁶ raised to 10⁻⁶. Clear or not? Clear? So your sequence is bounded, and in fact this is what, this is your limit, terms tending to 0 as and tending to infinity. So 0 is your lower bound as well as here infimum, and this one is your supremum, and hence your sequence is bounded here. Clear है? ओके. तो इस तरह से कोई भी सीक्वेंस रहेगा तो आप पहले तो उसके टर्म्स को ऑब्जर्व करना, उसके बाद आप इजीली बता दोगे कि आपका जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड है या नहीं है. क्लियर? नाउ वी विल मूव टू दिस क्वेश्चन. जेम IIT जेम 2012. ठीक है. सो आवर क्वेश्चन इज, देयर वी हैव ना 4 ऑप्शंस. सो उन 4 ऑप्शंस में वही सीक्वेंस का मोनोटोनिक नेचर, बाउंडेडनेस और कन्वर्जेंस, सीक्वेंस का कन्वर्जेंस, वो सब कुछ पूछा गया था. तो 2 ऑप्शंस हमारे पास मोनोटोनिक और बाउंडेड सीक्वेंस के आ रहे थे, तो हम ये दोनों टॉपिक इस सीक्वेंस के डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर. ठीक है, ओके. सो लेट xn be your sequence and the terms of the sequence are defined by this. xn सीक्वेंस का square root of 1 minus square root of 1, square root of 2 minus square root of 2, square root of 3 minus square root of 3, square root of 4 minus square root of 4, like that. ठीक है, दिस इज योर सीक्वेंस xn. सो क्लियरली हियर xn सीक्वेंस के बारे में तो कुछ नहीं पूछा है, हमें yn सीक्वेंस के बारे में पूछा है. क्लियरली योर xn सीक्वेंस इज व्हाट, ऑसिलेटिंग ना. अच्छा हो गया, ऑसिलेटिंग सीक्वेंस तो अभी मैं आपको बताऊंगी, सो लीव दिस पार्ट. एनीवे, ओके. सो हियर yn is another sequence which is defined by xn. So in the nth term of yn, what we have x1 plus x2 plus x3 dash plus xn divided by n. Sum of the first n term of this sequence xn divided by n. इस तरह से हमारा yn सीक्वेंस डिफाइंड हो रहा है. और अभी हमें yn सीक्वेंस के बारे में बताना है कि ये मोनोटोनिक और बाउंडेड है या नहीं. तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा यहाँ पर yn सीक्वेंस को रीडिफाइंड. हमें करना होगा yn सीक्वेंस को रीडिफाइंड. ठीक है. सो xn सीक्वेंस आ रहा था हमारे पास -1, start with -1 or 1, sorry, it's starting start with +1. ठीक है, ओके. So I have square root of 1 minus square root of 1, square root of 2 minus square root of 3, square root of 2, square root of 3 minus square root of 3, and like that. ठीक है. And the yn sequence x1 plus x2 like xn divided by n.
So to show whether a yn is sequence yn is monotonic or bounded or not, हमें पहले तो इसकी टर्म्स को देखना होगा, इसको रीडिफाइन करना रहेगा, ठीक है. ओके, सो y1, what will be the y1? That is x1 by 1. So x1, x1, x2, x1, x2, x3, x4, x5, x6, like that ना, ठीक है. So x1 y1, so you will have 1, y2, x1 plus x2 means this plus this divided by 2, you will have 0, y3, x1 plus x2 plus x3, ये cancel out हुआ, just you have root 2 divided by 3, y4, sum of the four term will give you 0, y5, sum of the five term, so till 4 term we have 0, so just we'll have here fifth term which is root 3 by 5, y6, sum of the sixth term will give you 0, take few more terms, y7, ठीक है, y7 will be sum of the seventh term, so we have square root of 4 divided by 7, y8 sum of the 8th term and so on, ठीक है. So here we are observing even term of the sequence are 0, ठीक है. So here your yn sequence can defined as when n is even then the value is 0, and when n is odd then the value is non-zero, given by these numbers, ठीक है. अब हमें इन numbers को observe करना रहेगा, ठीक है. So if you observe them, y1 1, y3 here you have 3, y5 here you have 5, y7 here you have 7. So denominator में तो same odd number आ रहा है, ठीक है. And in the numerator you have square root, ठीक है. Here you y1 you have 1, y3 you have 2, y5 you have 3, y7 you have 4. So in the numerator if I add 1 and divide it by 2, so I have 1. Here in the 3 if I add 1 divided by 2, 2 मिल जा रहा है, divided by 2 3 मिल जा रहा है, 7 plus 1 divided by 2 4 मिल जा रहा है, yn is greater than equal to 0, yn is greater than equal to 0 and 0 is the term of the sequence, तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर infimum, clear ना. Anyway, now upper bound, so this is your 1, here you have root 2 by 3, ठीक है, root 2 by 3, here you have root 3 by 5, so all the terms are what, less than 1 na, these all the non-zero terms are what, less than 1, clear है. So as 1 is your upper bound and also term of the sequence, so ये respective आपको क्या देगा, supremum दे देगा sequence का. So clearly your sequence is bounded, sequence yn is bounded. ये मैंने एक्स्ट्रा में डिस्कस किया है, सुप्रीमम एंड इन्फीमम. यहाँ पर केवल मुझे बाउंडेड बताना था, तो बस सीक्वेंस की टर्म्स को देखते हुए ही हमें पता चल जा रहा है दैट आवर सीक्वेंस इज बाउंडेड. क्लियर है. चलो ठीक है, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. So okay, so this example appeared in 2015. So the example is, let f is a function from R to R which is strictly increasing and continuous on R, ठीक है, and n is the sequence of real numbers in the closed interval 0 to 1, means all the term of this sequence an lies in this closed interval 0 to 1. Then
we have to show whether this sequence is increasing or bounded या फिर not necessarily bounded, and one option was convergent. ठीक है, so अभी तक हम लोगों ने convergent sequence डिस्कस नहीं किया है, तो आई एम स्किपिंग दिस पार्ट. हम लोग केवल इन 4 ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे. ए ऑप्शन, बी ऑप्शन एंड इट इज सी ऑप्शन. ठीक है, ओके. So f is the function from R to R which is strictly increasing and also continuous, means graph of the function is continuous on entire real line. ठीक है, okay. And an is a sequence of real number in this closed interval 0 to 1, and अभी हमें इस सीक्वेंस के बारे में बताना है कि दैट सीक्वेंस इज इंक्रीजिंग और बाउंडेड और नॉट नेसेसरीली बाउंडेड. सो बाय द वे व्हाट इज दिस सीक्वेंस? एफ हमारे पास गिवन रहेगा. ठीक है, तो उस एफ फंक्शन के अंडर हमें क्या लेना होगा? एन सीक्वेंस के एलिमेंट्स की इमेजेस देखनी होगी. एन सीक्वेंस के एलिमेंट्स की इमेजेस देखनी होगी, तो उन इमेजेस का जो सीक्वेंस मिलेगा वो हमें एफ ऑफ एन मिलेगा. क्लियर है? ठीक है. अब देखो, एग्जाम में अगर इस टाइप का कोई भी अगर क्वेश्चन आएगा तो हम लोग उसको कैसे सॉल्व करेंगे? हम लोग उसे सॉल्व करेंगे बाय टेकिंग एग्जांपल्स. सबसे बेस्ट मेथड होता है बाय टेकिंग एग्जांपल्स. मतलब हम कुछ ऐसे एग्जांपल लेंगे जो कि हमारे पास 4 ऑप्शन गिवन रहेंगे, उनमें से 3 ऑप्शंस को वो नॉट ट्रू बता रहे होंगे. 3 ऑप्शन को अगर हमने नॉट ट्रू बता दिया तो जो रिमेनिंग है वो क्या हो जाएगा? हमारा ट्रू ऑप्शन. क्लियर है? दिस इज द ओनली वे टू सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस. हमें बाय एग्जांपल ही सॉल्व करना होता है. तो सबसे पहले तो मुझे एक फंक्शन लेना होगा, एफ फंक्शन लेना होगा, जो कि आर टू आर डिफाइंड हो एंड दैट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड कंटिन्यूअस. स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड कंटिन्यूअस. सबसे पहले माइंड में कौन सा फंक्शन आता है जो कि आर टू आर पे डिफाइंड हो और जो कि कंटिन्यूअस भी हो और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो? बहुत बेसिक सा है. f(x) is equal to 1x. ग्राफ क्या होता है इस फंक्शन का? ये होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है और कंटिन्यूअस भी होता है. ठीक है, ओके. एंड आर टू आर डिफाइंड है, डोमेन इज आर एज वेल एज कोडोमेन इज आल्सो आर हियर. ओके, सो f of 1 by n is equal to 1 by n here. ठीक है, by the definition of function and by the definition of sequence an, we have f of an sequence is 1 by n. Clear? Simple sequence. We get simple sequence. Okay. Now, what are the things we know about this sequence? 1 by n sequence. We know this sequence is decreasing, that is monotonic, and we know this sequence is bounded. We know this sequence is decreasing, that is monotonic and bounded. So options C option, not necessarily bounded, but we have this sequence is bounded, so this option is not true. This sequence is bounded ना, और C option में आ रहा है. In the C option we have sequence not necessarily bounded, but here we are having bounded sequence, so that's why C option is not true. And A option, sequence f of an, sequence is increasing, but we have this sequence is decreasing, so this option is also not true. This option is also not true, so the remaining option is what? Bounded. So this A option and C option. Clear? Okay. तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया. Let us move to the another example. So another example is, and it is of JM 2016. ठीक है. So here Sn be a sequence of real number, which is Sn be a sequence of real numbers which is defined by Sn is equal to 2 raised to minus 1 raised to n time 1 minus 1 by n sine of n pi by 2. ठीक है, for all n in n, and we want to find, the question is then least upper bound of the sequence
Sn is equal to what? ठीक है, it was NAD टाइप, ठीक है, NAD टाइप था. लीस्ट अपर बाउंड हमें सीक्वेंस का बताना है. लीस्ट अपर बाउंड दैट इज सुप्रीमम ऑफ दिस सीक्वेंस. ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले तो सीक्वेंस के टर्म्स को ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, ताकि हम लोग अपर और लोअर बाउंड देख सकें. आफ्टर दैट वी विल डिस्कस इन्फीमम एंड सुप्रीमम ऑफ दिस सीक्वेंस. चलो ठीक है. अब सो अगर हम सीक्वेंस की टर्म्स को अगर ऑब्जर्व करते हैं nth टर्म को, सो हियर बेसिकली वी आर हैविंग थ्री टर्म्स. nth टर्म इज द प्रोडक्ट ऑफ थ्री टर्म्स. अगर मैंने इस टर्म को देखा, सो व्हाट इज n? आइदर दिस टर्म इज पॉजिटिव और नेगेटिव. सो आइदर दिस टर्म इज 2 और 1/2. दिस टर्म इज 2 और 1/2. फॉर एवरी n दिस विल बी डिफरेंट, है ना. हर एक टर्म n के लिए ये तो डिफरेंट रहेगा. एंड इट इज व्हाट? sin n/2. इट इज पीरियडिक टर्म. इट इज पीरियडिक टर्म. तो सबसे पहले पीरियडिक टर्म को ही हमें सिंप्लीफाई करना होता है, मतलब इसकी टर्म्स को देखना होता है. sin n/2. So if I put n equal to 4 here, then I have 2 pi. Sin is a periodic function of period 2 pi ना. तो n equal to 4 पुट करने पे मुझे 2 pi दैट इज इसका पीरियड मिल जा रहा है. तो 4 टर्म्स ही डिस्टिंक्ट रहेगी और बाकी सारी टर्म्स रिपीट होती जाएगी. ठीक है, तो n equal to put 1 0 2 पुट करने पर सॉरी इफ आई पुट n equal to 1 then sin pi/2 that is 1. n equal to 2 sin pi that is 0. n equal to 3 pi/2 minus 1. n equal to 4 so sin 2 pi which is 0. so यही टर्म डिस्टिंक्ट रहेगी. आप चाहो तो कंप्यूट करके देख लो, सेम टर्म मिलेगी. ठीक है, ओनली दीज 4 टर्म्स आर डिस्टिंक्ट. in fact here also only 3 terms are distinct because 2 terms are same here 0 0. clear? ठीक है, ओके. चलो, तो अब इस टर्म को अब कंप्यूट करने से हमें आइडिया मिल रहा है कि व्हेन n इज इक्वल टू 2 4 व्हेन n इक्वल टू 2 4 6 8 10 12 like that is when n is even, then this term is 0. then this term is 0, that means ओवरऑल टर्म क्या रहेगी हमारी? 0. क्योंकि हमें सीक्वेंस की टर्म्स को फाइंड करना है ना, तो पहले सीक्वेंस की टर्म्स को देख लेते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उसके बाद आगे सीक्वेंस की टर्म्स को निकालते हैं. ठीक है, तो अगर मैंने सीक्वेंस को देखा तो मुझे मिल रहा है कि अगर n इवन है, इफ माई n इज इवन देन वैल्यू इज 0. इफ n इज ऑड देन द टर्म डिफाइंड बाय दिस. ठीक है, 2 raised to minus 1 raised to n 1 minus 1 by n and sin of n pi/2. ठीक है, या तो ये 1 लेगा या फिर -1 लेगा. तो इवन टर्म्स को तो कंप्यूट करने की जरूरत नहीं है, हमें केवल और टर्म्स को कंप्यूट करने की जरूरत है. यहाँ पर सीक्वेंस की टर्म्स को देख कर ही तो हम लोग क्या करेंगे, बाउंड बताएंगे. तो मुझे और टर्म्स बतानी है. सीक्वेंस Sn क्या हो रहा है? 2 raised to minus 1 raised to n when n is odd. तो टर्म्स डिफाइंड हो रही है 1 minus 1 by n sin of n pi/2. क्लियर? ओके. सो S1 क्या रहेगा? व्हाट इज योर S1? इफ n इक्वल टू 1 पुट करने पर यहाँ पर क्या मिल रहा है? -1 दैट इज 1/2. बट n इक्वल टू 1 पुट करने पर ये 0 मिल जा रहा है. सो ओवरऑल टर्म क्या आ जा रही है? 0. तो S1 इज 0. नाउ S3, इफ आई पुट n इक्वल टू 3, सो क्या मिल रहा है? नेगेटिव दैट इज 1/2. और नंबर्स के लिए तो ये क्या मिलेगा? ऑलवेज 1/2 ही मिलेगा, because -1 raised to n is odd, so you have always negative. 2 raised to -1 will give you 1/2, so always you will have here 1/2. ये भी फिक्स्ड हो गया. 1 minus 1/3 and 3 पर साइन का वैल्यू क्या मिल रहा था? साइन की टर्म्स आ रही थी हमारे पास 1 0 -1 0 1 0 -1 0 एंड लाइक दैट. ठीक है, ओके. सो थर्ड पे साइन क्या मिल रहा था हमारा? नेगेटिव. So here you are having minus, you have 1/2 and 2/3. So I just have minus of 1/3. Similarly, I can compute fifth term. So here fifth term will be, when you compute the fifth term, then it will be fifth term. फिफ्थ टर्म पे साइन की वैल्यू तो पॉजिटिव आ रही है और यहाँ से 1/2 1 minus 1/5 and sin is 1.
So I just have here 4 by 5, 2 to 2 cancel out, so I just have 2 by 5. ठीक है. If you compute seventh term, so आप जब कंप्यूट करोगे तो सेवंथ टर्म आपको 3 by 7 मिलेगा. ठीक है. When you compute ninth term, so the ninth term will be 4 by 9. When you compute 11th term, then the 11th term will be minus of 5 by 11. Easily compute कर सकते हो ना. Minus of 5 by 11. ठीक है. If you compute as 13, so as 13 will be your 6 by 13. If you compute as 14 and like that, sorry, as 14 तो हमें compute करना नहीं रहेगा, हमें compute करना रहेगा as 15. So your as 15 will be नेगेटिव रहेगा, सो हमें नेगेटिव तो देखना नहीं है, बेसिकली हमें तो केवल पॉजिटिव ही देखना है. एज 17 विल बी योर 8 बाई 17 एंड सो ऑन. ठीक है. इजीली फटाफट टर्म्स कंप्लीट कर लेना आप लोग. एनीवे, तो अभी अगर मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ, इवन के रेस्पेक्ट में तो टर्म सारी जीरो आ रही, ऑड के रेस्पेक्ट में S1 तो जीरो आ गया, S3 इज नेगेटिव, S5 इज, दिस टर्म इज नेगेटिव, है ना, एंड दिस टर्म इज positive, again this term is negative, positive, negative, positive या negative and it is positive. ठीक है. सो जब हमारा n ऑड हो रहा है तो हमें क्या मिला, नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों ही टर्म्स मिल रही है. ठीक है. और मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना अपर बाउंड. तो अगर सीक्वेंस की टर्म पॉजिटिव भी आ रही है और नेगेटिव भी आ रही है, तो जो अपर बाउंड रहेगा वो क्या होगा, पॉजिटिव रहेगा. अपर बाउंड जो रहेगा पॉजिटिव रहेगा, दैट इज लीस्ट अपर बाउंड भी क्या रहेगा हमारा, पॉजिटिव रहेगा. तो मुझे केवल पॉजिटिव टर्म्स पे फोकस करना है. मुझे किन पे फोकस करना है, मुझे केवल पॉजिटिव टर्म्स पे फोकस करना है. तो यहाँ पर पॉजिटिव टर्म्स अगर मैंने देखा, सो ये वाली टर्म, दिस टर्म इज पॉजिटिव. ठीक है. योर दिस टर्म इज पॉजिटिव, योर दिस टर्म इज पॉजिटिव, योर दिस टर्म इज पॉजिटिव. दैट मीन्स कौन कौन सी टर्म पॉजिटिव आ रही है, हमारे पास आ रही है S5, ठीक है, S9, S13, ये टर्म्स हमारे पास पॉजिटिव आ रही है. अब अगर मैंने इन टर्म्स को देखा, ठीक है, सो दिस विल गिव यू 0.4. स्क्रिप्ट आ रहा है 5, 9, 13. तो क्या मैं इनको रिप्रेजेंट करने वाला nth टर्म फाइंड कर सकती हूँ. Can I find the nth term of this? फाइंड कर सकती हूँ, बिकॉज ये किस में आ रहा है, ये हमारा AP में आ रहा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है विद द कॉमन डिफरेंस 4. सो nth term क्या रहेगा, A plus n minus 1 into D. So here first term is your 5 plus n minus 1, then the common difference is 4. So what I have 4n plus 1. I have 4n plus 1. So S 4n plus 1 मुझे ले लेना है, जो कि रिप्रेजेंट करेगा S5, S9, S13 एंड सो ऑन. इन टर्म्स को, इन टर्म्स के रेस्पेक्ट में सीक्वेंस की जनरल टर्म आ जा रही है. ठीक है. सो 2 raised to minus 1 raised to this, so ये तो 1/2 देगा. 1 minus 1/n, इंस्टेड ऑफ n हम पुट कर देना, हमें पुट कर देना ये, और साइन की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी, साइन की वैल्यू +1 आएगी, क्योंकि हम पॉजिटिव नंबर्स में डील कर रहे हैं. इस पे आप इजीली देख लोगे ना, साइन की वैल्यू 1 ही रहेगा. ठीक है. साइन n π/2, for n equal to 4n plus 1, वैल्यू इज 1. इजीली चेक कर सकते हो. ओके, सो आई जस्ट हैव हियर 1/2 into 1 minus 1 upon 4n plus 1. So when n tending to infinity, then as 4n plus 1 means these terms tending to 1/2, and tending to infinity these terms, and this term tending to 0. So overall these terms are tending to 1/2, and 1/2 is your 0.50. So these terms 0.4, 0.44, 0.461 and like that are tending to 0.5. क्लियर है, क्लियर ना. तो सीक्वेंस में हम देख रहे थे कि नेगेटिव टर्म्स आ रही थी,
नेगेटिव टर्म्स आ रही थी, 0 आ रहा था इवन टर्म्स के रेस्पेक्ट में, और फिर कुछ पॉजिटिव टर्म्स आ रही थी। तो जो हमारी पॉजिटिव टर्म्स है उनमें पॉजिटिव टर्म्स हमारी इंक्रीज कर रही थी, तो फिर मैंने क्या लिया, उन पॉजिटिव टर्म्स को रिप्रेजेंट करने वाला सीक्वेंस का टर्म लिया और उसकी लिमिट देख ली। तो सीक्वेंस की टर्म्स कहाँ पर अप्रोच कर रही है, 0.5 पर। तो लिमिट से अगर आपको क्या मिल रहा है, ओके, तो यहाँ पर आप क्या बोल दे रहे हो, Sn इज लेस देन 0.5 फॉर ऑल n। तो ये क्या हो जा रहा है, आपका अपर बाउंड हो गया। वन मोर थिंग, मैंने बताया था अपर बाउंड लोअर बाउंड अगर सीक्वेंस की टर्म है तो वो रेस्पेक्टिव सुप्रीमम और इंफीमम हो जाते हैं। ऐसे ही अगर अपर बाउंड लोअर बाउंड आप किसके थ्रू फाइंड कर रहे हो, अगर आप लिमिट के थ्रू फाइंड कर रहे हो, इफ यू आर फाइंडिंग अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड बाय टेकिंग लिमिट, तो भी वो रेस्पेक्टिव सुप्रीमम और इंफीमम होगा। दो बातें ध्यान रखना। तो यहाँ पर मुझे अपर बाउंड किसके थ्रू मिला है, लिमिट के थ्रू, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सुप्रीमम ऑफ सीक्वेंस xn, दैट इज लीस्ट अपर बाउंड ऑफ सीक्वेंस xn which is 1/2, that is 0.5। ठीक है, तो इस तरह से आप, अगर आपके पास कोई भी ऐसा सीक्वेंस आता है तो पहले तो उसकी टर्म्स को ऑब्जर्व करना। ठीक है, जैसे कि मैंने रीडिफाइन किया कि इवन नंबर्स के लिए तो 0 आ गया, फिर मैंने और टर्म्स के लिए निकाला। अब और टर्म्स के लिए मैंने निकाला तो मुझे पता चला था वहां पे टर्म पॉजिटिव भी आ रही थी और नेगेटिव भी आ रही थी। ओके, अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में पूछा गया था लीस्ट अपर बाउंड, मतलब मुझे क्या फाइंड करना था, अपर बाउंड। ओके, अब टर्म्स नेगेटिव भी आ रही है पॉजिटिव भी आ रही है, तो अपर बाउंड कौन होगा, पॉजिटिव वाला होगा। तो मुझे केवल पॉजिटिव टर्म्स पे फोकस करना था। अब मैंने पॉजिटिव टर्म्स को देखा, केवल 3 ही टर्म्स देखी थी ना पॉजिटिव में, बहुत ज्यादा टर्म्स हम देख भी नहीं सकते एग्जाम में क्योंकि इतना टाइम हमारे पास होता नहीं है। ओके, तो फिर मैंने देखा कि टर्म्स आ रही थी 0.4, 0.44, 0.461 लाइक दैट, मतलब टर्म्स इंक्रीजिंग सेंस में जा रही थी। अगर डिक्रीजिंग सेंस में होती तो वो जो फर्स्ट टर्म जो हमारी 0.4 आ रही थी वही हमें अपर बाउंड दे देता ना। ओके, तो अभी ये जो एग्जाम्पल है, ये जो क्वेश्चन आया था 2018 में, जेम 2018 में। सो द क्वेश्चन इज let n be a sequence of real number where nth term is defined according as n is odd and n is even, like that, and we will find here, we need to find here supremum of this sequence and infimum of this sequence. So basically in this question there were 4 options containing supremum of sequence, infimum of sequence and limit superior and limit inferior of the sequence. So limit superior and limit inferior I will discuss later, so that's why I am taking only these 2 points जिनको हमें इस सीक्वेंस के लिए कंप्यूट करना है। ठीक है, ओके, तो अभी जैसा कि मैंने प्रीवियस एग्जांपल बताया था, यहाँ पर भी आपको क्या करना होगा, सीक्वेंस की टर्म्स को ऑब्जर्व करना होगा, सीक्वेंस की टर्म्स को ऑब्जर्व करना होगा, बस इवेल्युएट करना सीक्वेंस की टर्म, जैसे कि मैंने प्रीवियस एग्जांपल में आपको बताया था, बस उससे आपको क्लियरली आइडिया लग जाएगा कि इसका सुपीरियर क्या होगा और इसका सुप्रीमम क्या होगा और इन्फीमम क्या होगा। सो बेसिकली दिस क्वेश्चन आप लोग एज ए एक्सरसाइज सॉल्व करना, डू दिस क्वेश्चन एज ए एक्सरसाइज, और अगर कोई भी डाउट होता है तो फिर आप मुझसे नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हो। ठीक है, मतलब आप कमेंट बॉक्स में, यूट्यूब में कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट पूछ सकते हो, जो भी आपको अगर इस क्वेश्चन में अगर आता है तो। ठीक है, ओके देन, सो आज का लेक्चर तो हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कोई और टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। टिल देन, गुड बाय।